everyone, we are Group A here to present on the topic the Mauryan administration. I, Avantika Upadhyay, will introduce you the origin and sources of Mauryan dynasty. The origin of Mauryan dynasty. The Mauryan Empire was founded in 322 BC by Chandragupta Maurya. He overthrew the Nanda dynasty with help of Chanakya and established the empire. According to Brahminical tradition, Chandragupta Maurya belongs to Sudra caste. Sources of Mauryan dynasty. Two major sources of Mauryan dynasty. One is literary source and another is archaeological source. Literary source includes Kautilya Arthashastra, Megasthenes Indica, Vishakhadat, Mudra Rakshas, Purans and Buddhist literature. And the archaeological source includes Ashoka edicts and inscriptions and other inscriptions. Saptanga theory. According to Chanakya, there are 7 elements of state Mauryan administration based on Saptanga theory. The word Saptang indicates limbs, describing their meanings respectively. Swami, head, Amatya, eye, Janpad, leg, Durg, arms, Kosh, mouth, Dand, mind, Mitra, ear. I am Anjali Yadav. I am here to discuss about central administration. Mauryan administration was highly centralized. King was considered as the supreme power and sources of all authorities. It was responsibility of Mauryan king as the head of executive to maintain social order by punishing guilty. He was also accountable for the safety and security of his kingdom. As the head of administration, the king selected ministers and other officials of administration. As the head of judicial department, it was the duty of Mauryan king to ensure justice to the people and rectify their grievances. However, the vastness of Mauryan Empire restrained the king from personally settling all the cases himself, but as his was the final court of appeal, he issued final judgment. The king had a power of law making and also the power and right to suspend the custom and justice. As the head of military of Mauryan Empire, king was the supreme commander of army. No one can deny that kings of Mauryan Empire possess the huge power. I am Ashwarya and I am going to talk about my topic Mantri Parishad. The Arthashastra as well as the Ashokan inscriptions refer to a council of ministers called Mantri Parishad. The Arthashastra mentions that the work of the state cannot be carried out without assistance. It mentions that as the chariot cannot move on one wheel, hence the king should appoint ministers and listen to their advice. Similarly, the Girnar Rock Edicts of Ashoka mentions about the function of the council. Rock Edict 3 implies that the Parishad was expected to the new administrative measures were carried out by different categories of officials. Rock Edict 6 mentions that the ministers can discuss the king's policy during his absence, suggest amendment and decide upon any important matter which the king has left to them. Yet the council had to report its opinion to the king immediately. The power of the council might have varied from time to time, yet its primary role remained that of an advisory body. An interesting point mentioned in the Arthashastra is the criteria or the qualifications for the appointment of ministers. We do get references about 18 departments called Tirath of the central government in Arthashastra. For example, the Karmantika looked after the industries, the Antarvanshika looked after the king's security, and the Sanidata looked after the treasury, etc. All the Tiraths were getting 48,000 pan per annum, which is equivalent to 4,000 silver coins. मेरा नाम अलका है। मेरा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों का विभाजन। मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों को प्रांत के अधिकारी, जिला के अधिकारी, गांव के समूहों के अधिकारी एवं गांव के अधिकारी के रूप में विभाजित किया गया था। प्रांत के अधिकारी प्रायः कुमार या आर्यपुत्र होते थे। कुमार राजा के पुत्र तथा आर्यपुत्र राजा के सगे संबंधी होते थे। इनका कार्य प्रांत में कानून एवं न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का होता था।
जिला के अधिकारी में प्रादेशिक एवं राजूक होते थे। प्रादेशिक का कार्य जिला में राजस्व इकट्ठा करने का तथा न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का होता था तथा राजूक का कार्य भूमि की पैरामाइश एवं नपाई करने का होता था। इसके बाद आते हैं गांव के समूह के अधिकारी। गांव के समूह के अधिकारी को दो भागों में विभाजित किया गया था, स्थानिक एवं गोपा। स्थानिक का कार्य कर इकट्ठा करने तथा गोपा का कार्य संग्रहण करने का होता था। इसके बाद आते हैं गांव के अधिकारी। गांव के अधिकारी में ग्रामीणी गांव का प्रधान अधिकारी होता था तथा इसका कार्य गांव में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का होता था तथा इसका चुनाव गांव के लोगों द्वारा किया जाता था। धन्यवाद। मेरा नाम कीर्ति है। मैं मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मौर्य साम्राज्य पूर्ण रूपेण एक विशाल साम्राज्य था, इसीलिए स्वाभाविक था कुशल साम्राज्य संचालन हेतु अवश्य ही उसे प्रांतों में विभाजित किया गया होगा। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्रोत अर्थशास्त्र से हमें प्रांतों के नामों का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु अशोककालीन अभिलेखों से हमें निम्नलिखित प्रांतों के नामों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य अपने कुशल शासन संचालन हेतु अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया था। पहला प्रांत उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दूसरा प्रांत अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी, तीसरा प्रांत प्राच्य जिसका तात्पर्य पूर्वोत्तर भारत से जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, चौथा प्रांत कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, पांचवा प्रांत दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी। मौर्य साम्राज्य अपने सभी प्रांतों के शासन संचालन हेतु राज्यपालों को नियुक्त किया था, जिन्हें प्रांतीय राज्यपाल कहा जाता था। इनका कार्य अपने राज्य में शांति व्यवस्था को रखना, दूसरा केंद्रीय सरकार की नीति के अनुसार सामंतों को नियंत्रित करना तथा केंद्रीय करों को वसूलना इत्यादि। कुछ अशोककालीन अभिलेखीय प्रमाणों से यह भी सुनिश्चित होता है कि प्रांतीय राज्यपाल अपने कार्य में मंत्रिमंडल की सहायता लेते थे। इस प्रकार हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि प्रांतीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य के शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। मैं अंकिता केसरी मौर्य काल के नगर प्रशासन के बारे में बताने जा रही हूँ। नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार पूरे नगर प्रशासन की व्यवस्था को संभालने के लिए 3 सदस्यों वाली एक गठन का आयोजन किया गया था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति का कार्य उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करना था। द्वितीय समिति का कार्य विदेशियों की देखभाल करना और उनकी सुरक्षा करना था। तृतीय समिति का कार्य जन्म मरण की ब्यौरा रखना और उनका पंजीकरण करना था। चतुर्थ समिति का कार्य व्यापार एवं वाणिज्य का निरीक्षण करना था। पंचम समिति का कार्य निर्मित की गई वस्तुओं की विक्रय का देखभाल करना और निरीक्षण करना था। षष्ठम समिति का कार्य विक्रय कर वसूल करना था। मेरा नाम अंजना यादव, क्लास BA थर्ड ईयर्स। मेरा टॉपिक मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई थी, इसे ग्राम कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्रामिका के नाम से जाना जाता था। ग्रामिका सरकार के एक भुगतान किए गए कर्मचारी नहीं थे, लेकिन गांव के लोगों द्वारा चुने गए थे। 100 ग्राम सामूहिक रूप से एक गोपा के मुखिया थे और 100 ग्राम सामूहिक रूप से शंखनाद करते थे। राज्य ग्रामों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। ग्रामीण को गांव की भूमि का प्रबंध करने तथा सिंचाई के साधनों का व्यवस्था करने का अधिकार था। ग्रामों में छोटे मोटे विवादों का फैसला करती थी। ग्रामीण किसानों से भूमि कर एकत्र कर राजकीय कोषागार में जमा करता था। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन के विषय में सहगौरा तथा महास्थान के लेखों से सूचना मिलती है कि इनमें जनता की सुरक्षा के लिए बनाए गए कोष्ठागारों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में भी कोष्ठागार निर्माण की चर्चा है। इससे लगता है कि कर वसूली अन्नों के रूप में की जाती थी तथा कोष्ठागारों में रखा जाता था। इस अन्न को अकाल पड़ने पर आपत्तियों के समय ग्रामीण जनता को दिया जाता था। Hello everyone, I am Komal Kumari from BA third year. Today I am here to present my view on organization of army during Mauryan period. So when we talk about Mauryan army, it was the largest standing military force of its time, supported the expansion and defense of the empire. According to Megasthenes, the empire wielded 6 lakh infantry or foot soldiers, 30,000 cavalry or
soldiers on horseback, and 9,000 war elephants. A vast spy network collected intelligence for both internal and external security purposes. Although Emperor Asoka renounced offensive warfare and expansionism after converting to Buddhism, he maintained this standing army to protect the empire from external threats and maintain stability and peace across Western and Southern Asia. So, with this, I would like to end my topic. Thank you. मेरा नाम कविता सोनकर है। मैं न्याय व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त विवरण करने जा रही हूँ। मौर्यों के शासन काल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इस राजा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए अंतिम अदालत थी। न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे। पहला धर्मस्थीय न्यायालय, इसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होते थे। इसके मुख्य न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहते थे। दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, इसमें व्यक्ति और राज्य के बीच के विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई होता था। इसके मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। मौर्य काल में दंड विधान अत्यंत कठोर होते थे, जैसे मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास एवं सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के दंडों का उल्लेख मिलता है। पहला पूर्व साहस दंड, इसमें 48 पड़ से लेकर 96 पड़ तक के होते थे। दूसरा मध्यम साहस दंड, इसमें 200 पड़ से लेकर 500 पड़ तक के होते थे। तीसरा उत्तम साहस दंड, इसमें 500 पड़ से लेकर 1000 पड़ तक के होते थे। अतः यह कह सकते हैं कि मौर्यों के प्रशासन प्रबंध में न्याय व्यवस्था एक अहम कड़ी के रूप में रहा हो। दीप्ति कुमारी मौर्य प्रशासन काल के करों के बारे में बताने जा रही है। पहली बार मौर्य काल में ही कर प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसका पता हमें अर्थशास्त्र से चलता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक वस्तुओं पर कर लगाकर सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करना था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांत उपज का 1/6 होता था, परंतु व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ बढ़ा दिया जाता था। मौर्य शासन में कृषि की आय पर लोगों को 25% तक कर देना पड़ता था। ऐसी भूमि से तात्पर्य राजकीय भूमि से। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि यदि कोई किसान अपने हल, बैल, उपकरण, बीज आदि लगाकर राजकीय भूमि पर खेती करता था, तो उसे उपज का आधा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया है। नगरों में जल एवं भवन कर भी लगाए जाते थे। कृषकों को सिंचाई कर भी देने पड़ते थे। स्थानिक तथा गोप नामक पदाधिकारी प्रांतों में करों को एकत्र करते थे। विभिन्न प्रकार के करों को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे सीता। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया। भाग, भूमि कर को भाग कहा जाता था। बाली, लोगों द्वारा स्वतः धार्मिक कर दिया जाता था, उसे बाली के नाम से जाना जाता था। कारा, बागीचों, फल तथा फूलों पर लगाए जाने वाला कर को कारा कहा गया। विविध, चारागाहों पर जो कर लगता था उसे विविध कहा जाता था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति पाल और मेरा टॉपिक है मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत साम्राज्य की सफलता में कुशल गुप्तचर विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन आता था, जिसे महामात्य प्रसर्प कहा जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुण पुरुष नियोग नामक अध्याय में गुप्तचरों की व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि ये गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, एक संस्था और दूसरा संचरा। संस्था अर्थात होते थे ऐसे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रह के गुप्तचर का कार्य करते थे। संचरा में ये घुमक्कड़ गुप्तचर होते थे। संस्था को पंच संस्था भी कहते थे, क्योंकि ये 5 प्रकार के गुप्तचर इसमें आते थे। वैदेहिक, तापस, उदास्थित और कापटिक गुप्तचर जो होते थे वो छात्रों के भेष में होते थे। उदास्थित जो होते थे वो सन्यासियों के भेष में होते थे। तापस जो होते थे वो इनके ये या तो टकले होते थे या फिर इनके बाल बहुत ही बड़े बड़े होते थे। वैदेहिक जो होते थे वो व्यापारियों के भेष में होते थे।
संस्था इसमें 4 प्रकार के गुप्तचर आते हैं संस्था में तीक्ष्ण, सत्री और रसद और परिव्राजिका या भिक्षुड़ी। ये ऐसी महिलाएं होती थी जो बहुत ही चालाक होती थी और उसी राज्य में रह के गुप्तचर का कार्य करती थी। और जूनागढ़ अभिलेख में प्रदेष्टा या गो पुरुष को गुप्तचर का पर्याय माना गया है। स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर अर्थात पुलिस के नाम से भी पुकारा है। और गुप्तचर का कार्य विष कन्याएं भी करती थी। ये विष कन्याएं बचपन से ही इन्हें थोड़ा थोड़ा विष देकर बड़ा किया जाता था ताकि इन्हें अगर एक साथ विष दिया जाए तो इनके ऊपर कोई असर ना हो। और ये बहुत ही सुंदर होती थी। My name is Anjali Kumari and the subject of my talk is pros and cons of modern administration. As we reach towards the end of our presentation, there would be no other best way of concluding it without mentioning its pros and cons, hereby beginning with its strength. The empire was divided into provinces, and the provinces was further divided into various small regions, both for rural and urban areas. The central department maintained nearly a dozen of departments for maintaining the economic and social activities. It also gathered various taxes from its citizens. Tolls were levied on the products bought in town for sale. An espionage system was first implemented in modern administration. Now coming to the weaknesses part. The oppressive rule of province was the main cause of the decline of modern administration and the misrule of bureaucracy. And they imposed taxes on almost each and everything on ordinary citizens. The state controlled all the activities. Hence, the enormous expenditure on army and bureaucracy led the state into financial crisis. And as the king was the autocratic power, his few of the decisions badly impacted his whole empire. For example, King Ashoka. He granted various donations to Buddhist monks, which led to the empty of the royal treasury. Last but not the least, I would like to express hearty gratitude on the behalf of our group to Dr. Niranjan Srivastava, without whom this creative way of learning would not have been happened. Waiting for such more wonderful opportunity under your guidance, ma'am. Thank you.